friends, myself Neetu Gupta, Masters in Law from NLS Bangalore. In this session, we are going to discuss the void agreements. Indian Contract Act में जो void agreements है, we are going to discuss that. So that is last essential of contract given under section 10. That is, agreement is capable of being performed. It is not impossible of being performed. तो वो कौन से सेक्शन में आपके these are contained under section 26 to 30 and section 56. 26 to 30 and section 56. So what is void agreements? We have already discussed before. That is under section 2 clause G. Void agreement means an agreement which is not enforceable by law is said to be void. तो अब ये जो void agreements हैं specifically ये contract act में कुछ void declare किए गए हैं. There are some agreements which have been specifically or you can say expressly declared as void by Indian Contract Act. That is section 20 जो हम already discuss कर चुके हैं. Agreement in which the consent is caused by mistake is void. Next, section 23 and 24 we have discussed agreement of which consideration or object is unlawful. Then I have written here 25. I am so sorry. It is जो आपके ये void agreements हैं, they are from section 20, 23 to 30. 23 to 30 of Indian Contract Act. So agreement of which the consideration or object is unlawful, 23 and 24 we have discussed. Agreement without consideration is void under section 25 we have discussed. Exceptionals are there under section 25. Now agreement in restraint of marriage. Agreement in restraint of marriage under section 26. Agreement in restraint of marriage is void. Agreement in restraint of marriage is void. The policy reason is that if such type of agreements are allowed, then institution of marriage will be striked out for social civilized society and is applicably universal. Okay, so every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor. So now if you look at your Rex section 26, then it says every agreement in restraint of marriage of any person other than minor is void. What does it mean? It means कि अगर आप कोई भी किसी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, वॉइड होगा अदर देन माइनर. सिर्फ माइनर का ही अगर माइनर की शादी की आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा. इज इट क्लियर? रिस्ट्रेंट ये जो यहाँ पे रोक लगाई गई है, रिस्ट्रेंट लगाया गया है, वो जनरल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है. इज इट क्लियर? कि उसे कह सकते हैं कि तुम पूरी ज़िंदगी शादी मत करो, मैं तुम्हें इतना अमाउंट पे करूँगा. इज़ इट क्लियर? तो वो क्या है? वॉइड है. या आपको हम ये कह रहे हैं कि इतने 2 साल के लिए 3 साल के लिए शादी मत करो, आई एम गोइंग टू पे यू सच एंड सच अमाउंट. नो, दिस एग्रीमेंट इज़ वॉइड. पार्शियल हो गया. किसी पर्सन से कह रही हो इस पर्सन से मत शादी करो, या क्लास ऑफ पर्सन से इन लोगों से शादी नहीं करनी है तुम्हें. या फिर हम ये कह रहे हैं कि अपनी आउटसाइड ग्रुप ऑफ फैमिली से शादी नहीं करनी, उन्हें ये बता रहे हैं ये फैमिली से शादी करनी है. तो ये सब है केसेस में एग्रीमेंट इज़ वॉइड. इज़ इट क्लियर? सो दिस वाज योर सेक्शन 26. So section 27 talks about restraint of trade. It talks about restraint of trade. ठीक है, तो इट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. सो क्वेश्चन किस तरह से आपका आ सकता है इसमें, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू. डिस्कस द प्रिंसिपल प्रोविजन एंड पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड इट्स स्कोप एज प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब जो ये आपका प्रिंसिपल है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इट इज़ वेरी ओल्ड लॉ. It is very old law and it is a doctrine of common law under which certain agreements restricting and restraining a party in the matter of engagement in trade and business were enforceable and are void. Under British common law system, if such restriction is absolute and total, some principle has been asserted and adopted in India under section 27 of Indian Contract.
जो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है ये बहुत आपका पुराना लॉ है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन लॉ का है, ठीक है। और जिसमें क्या कुछ एग्रीमेंट्स जिसको रिस्ट्रेट करे थे कि आप ये बिज़नेस नहीं कैरी कर सकते, ये ट्रेड नहीं कैरी कर सकते, वो अनइन्फोर्सेबल और वॉइड हैं। ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम में भी यही है, ठीक है। लेकिन अगर ये वो क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम में अगर रिस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट या टोटल है तब भी अप्लाई होगा। आपने कहा कि कहीं और जाके बिज़नेस कर लो, ये हो गया पार्शियल। रिस्ट्रिक्शन है एब्सोल्यूट और टोटल होना चाहिए ब्रिटिश कॉमन लॉ में। और सेम प्रिंसिपल ये एक्सेप्ट कॉमन लॉ का जो ये डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड इन इंडिया अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट सेक्शन 21 से जो प्रोविज़न है इंडियन लॉ का, इट इज़ वाइडर इन ऑपरेशन एंड स्कोप ऑन 2 ग्राउंड्स, ठीक है। ये ज़्यादा वाइडर है और वो 2 ग्राउंड्स क्या है कि किस वजह से इंडियन लॉ में सेक्शन 27 का स्कोप ज़्यादा वाइडर है। लॉफुल प्रोफेशन एज टू द एक्सटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसलिए लॉफुल प्रोफेशन भी आ गया। इंग्लिश लॉ में रिस्ट्रिक्शन है टोटल है, लेकिन हमारे इंडियन लॉ में पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस भी वॉइड है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कॉमन लॉ ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, सिर्फ अगर एब्सोल्यूट और पार्शियल होगा, लेकिन इंडियन लॉ में इसका स्कोप ज़्यादा वाइडर है। वो कहते हैं कि पार्शियल रिस्ट्रिक्शन भी आप किसी को लगा रहे हो कि अपना बिजनेस कहीं और जाके कर लो, यहाँ मत करो कहीं और जाके कर लो, तो वो क्या पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो इवन दैट इज़ वॉइड। सो वी हैव नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट एक्सपेंडेड डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ कॉमन लॉ। नाउ लेट अस इंटरप्रेट सेक्शन 27 ट्रेड। मैंने आपको क्या बोला है यहाँ पे कि सेक्शन 20 हेडिंग क्या बोली थी, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी ट्रेड पे आप रोक लगा रहे हो। अब ये ट्रेड क्या है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स पर्टिकुलरली मूवेबल आर्टिकल्स, ठीक है। ट्रेड क्या है कि हम ख़रीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, और स्पेशली मूवेबल आर्टिकल्स। ट्रेडिंग मीन्स फिज़िकली एक्सचेंज, फिज़िकल एक्सचेंज कर रहे हैं हम गुड्स को, ठीक है। अब ये ट्रेड, नाउ द टर्म बिजनेस, क्या ये ट्रेड और बिजनेस सेम है या दे हैव डिफरेंस? जो ट्रेड एंड बिजनेस वर्ड्स हैं दे आर ओवरलैपिंग। ट्रेड क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ कमर्शियल एंड बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस है वो ज़्यादा वाइडर एरिया है विच कवर्स अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़। सो ट्रेड है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कमर्शियल एंड बिजनेस एक्टिविटी। इट इज़ मच वाइडर एरिया, जो बिज़नेस है वो ज़्यादा वाइडर एरिया है जो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कवर करते हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन आपका इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल इंक्लूड हो जाता है। बेसिकली क्या है आपकी जो ट्रेड और बिज़नेस हैं उसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ये जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था इंग्लिश लॉ का, तो उसमें क्या है प्रोफेशन नहीं कवर हो रहा था। इंग्लिश लॉ में प्रोफेशन नहीं कवर हो रहा था। मैंने आपको बताया ना कि ये जो इंडियन लॉ की प्रोविज़न है इसका ज़्यादा वाइडर है। इंडियन लॉ में दे हैव इवन कवर्ड, क्या कवर किया गया उन्होंने, दे हैव इवन कवर्ड लॉफुल प्रोफेशन, बट इंग्लिश लॉ में लॉफुल प्रोफेशन नहीं था। सो हाउ प्रोफेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड एंड बिजनेस, एंड व्हाट टेस्ट इज़ अप्लाइड फॉर डिटरमाइनिंग प्रोफेशन। अब ये जो आपका दोनों ट्रेड और बिज़नेस है ये कमर्शियल एक्टिविटी है। इट इज़ अ कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पे कि वेयर एज जो प्रोफेशन है ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ नॉट रिलेटेड विद बिजनेस। प्रोफेशन है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू कंज्यूमर अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टाइज से, स्किल से, नॉलेज से। इज़ इट क्लियर कि उन्हें even they have been given formal training in particular type of services, that is profession, is it? So एग्रीमेंट है जो, वो एग्रीमेंट में रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, रिस्ट्रेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। इज इट क्लियर? अब कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया, कोर्ट्स कह रहे हैं कि सारा टाइम एम्प्लॉई है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते,
क्योंकि उन्हें ऑलरेडी क्या है, पूरी कैपेसिटी दे दी है। ये सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, नॉट रिस्ट्रेंट। देयरफॉर ओनली रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी वॉइड। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ही वॉइड नहीं हो सकती, रिस्ट्रेंट होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन है क्या? इट इज़ रिस्ट्रेंट ओनली इफ द पर्सन हैज़ कैपेसिटी विच इज़ curtailed। दैट इज़ legal restriction on a person by itself is not a restraint unless such restriction is on the party having capacity to do which is being curtailed। इज़ इट क्लियर? सो इन शॉर्ट आपको सेक्शन 27 समझ में आ गया। व्हाट सेक्शन 27 वांट्स टू से इट सेज कि अगर आप किसी के ट्रेड पे, प्रोफेशन पे, बिजनेस पे रोक लगा रहे हो, वो चाहे एब्सोल्युटली रोक लगा रहे हो चाहे पार्शियल रोक लगा रहे हो, दैट इज़ वॉइड। आप किसी को किसी अपने उसका बिज़नेस को करने से रोक नहीं सकते हो, आप उसका ट्रेड करने से रोक नहीं सकते हो, प्रोफेशन करने से रोक नहीं सकते हो। अगर मैं आपको कह रही हूँ, मेरा भी एक कोचिंग सेंटर है, मेरे साथ में एक और कोचिंग सेंटर है, मैं उसको कह रही हूँ ये लो भई, मैं आपको आई मेक एन एग्रीमेंट विद दैट पर्सन की जो ओनर है कि मैं आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट, अपना ये कोचिंग सेंटर बंद कर दो। ही हैज़ अ राइट टू रन हिज कोचिंग सेंटर। अगर मैं रन कर रही हूँ, ही इज़ ऑल्सो राइट। सो दिस एग्रीमेंट इज़ नॉट वैलिड एग्रीमेंट, इट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट। इज़ इट क्लियर? नाउ हु कैन प्लीड Section 27 as a defense? This can be answered by this has been answered by the courts in the cases। Is it clear? कौन plead कर सकता है as a defense? So there is a famous case law, Madhup Chandar versus Rajkumar। Madhup Chandar versus राजकुमार। इस केस में क्या हुआ था, जनरली इस केस में एक विक्टिम ने प्ली किया था, ठीक है। विक्टिम को उसके ट्रेड से रोकने के लिए एग्रीमेंट किया गया था। द विक्टिम इन द रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज़ द पार्टी हु इज़ रिस्ट्रेंट और हुम रिस्ट्रिक्शन इज़ इम्पोज्ड। इज़ इट क्लियर? सो इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने फर्स्ट टाइम ये हेल्ड किया था कि जो डिफेंस है सेक्शन 27 में, वो दोनों पार्टीज़ प्लीड कर सकती हैं। प्रोविजंस हैं वो पार्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही दी गई हैं, बट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, सो बोथ पार्टीज कैन प्लीड द डिफेंस ऑफ सेक्शन 27। इज इट क्लियर? नाउ सी what section 27 says. It says an agreement by which anyone is restrained for exercising a lawful profession, trade or business of any kind to the extent is void। Is it clear? So ये आपका section 27 है। But if you look at your lyrics, there is an exception also। There is an exception also। अब ये exception क्या है? अब जो आपकी एक्सेप्शंस दी गई हैं सेक्शन 27 में, इवन दोज एक्सेप्शन इज़ नॉट एब्सोल्यूट रूल, इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस। ठीक है, सब एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शंस दो पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। एक तो आपकी स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, एंड अदर एक्सेप्शन इज़ जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन। तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन में क्या है, these are those exceptions which is provided by the legislature, which is provided by the law। section 27 में भी एक exception दी गई है आपकी, जिसमें, ठीक है, section 27 itself provides one exception, और बाकी आपकी जो exceptions हैं वो पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। so in total there are 4 statutory exceptions। is it clear? section 27 में क्या दिया गया है? What is given under section 27? It talks about sale of goodwill। It talks about sale of goodwill। Sale of goodwill में क्या है आपका? What is sale of goodwill? ये सिर्फ एक ही एक्सेप्शन जो सेक्शन 27 में मेंशन है। इसमें क्या है, सेलर है और बायर है गुडविल के, ये दो पार्टीज़ हैं, सेलर और बायर, देयर आर 2 पार्टीज़। जो गुडविल क्या है, मेन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मेन, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज समथिंग सच एज इट्स good reputation which increases the value of business। Is it clear?
तो गुडविल क्या है कि आपके बिजनेस की कितनी अच्छी रेपुटेशन है। सेलर ऑफ सच बिजनेस मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड बाय एग्रीमेंट। हमने सेक्शन 27 में ये बताया था ना कि आप किसी के बिज़नेस पे रोक नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ गुडविल। अगर आप सेल कर रहे हो, अपने बिज़नेस को सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आप सेलर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, उस किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं कि वो सेम बिज़नेस ना रन करे जो उसने सेल किया है, क्योंकि उसकी गुडविल है, उसी के पास जाएंगे सारे। और रिस्ट्रिक्शन है रीज़नेबल होनी चाहिए। ठीक है, रीज़नेबल मींस फॉर टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए आप नहीं रन कर सकते हो, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रन कर सकते हो। अब ये पॉलिसी रीज़न क्या है इस एक्सेप्शन के पीछे कि ये एग्रीमेंट्स इतने कॉमन है ट्रेड एंड बिजनेस में, मार्केट प्रैक्टिस है, तो वो अपनी खुद दोबारा से अपनी रेपुटेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? अब रीज़नेबल टाइम और एरिया क्या है? What is reasonable and area depends upon the facts and circumstances of the case. ऐसा कहीं नहीं लिखा कि this is a reasonable time and period. So there is a famous case of Nordenfelt versus Maxim Nordenfelt. अब इसमें किस केस में क्या हुआ था आपका? नॉर्डनफेल्ट के केस में ये गन्स एंड एम्यूनेशन से रिलेटेड केस था। तो इसमें पुराना केस है, इट इज़ ऑफ प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल इस केस में हेल्ड किया था व्हाट इज़ अ रीजनेबल टाइम एंड एरिया, इट इज़ टू बी एग्जामिन्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बायर एंड नॉट ऑफ द सेलर बिकॉज ही हैज़ पेड द प्राइस एंड टेस्ट फॉर टाइम इज़ एज रिक्वायर्ड बाय द फॉर मेकिंग हिज रेपुटेशन। ठीक है, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस पे है, बायर पे डिपेंड होता है कि वो उसको कितना टाइम लग रहा है अपने बिज़नेस को सेट करने में, रेपुटेशन करने में। रीज़नेबल टाइम बिज़नेस के नेचर पे, वो मैंने आपको बता ही दिया कि रीज़नेबल नेचर पे। इस केस में अब हुआ क्या था? व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस? ये जो नॉर्डनफेल्ट का केस था, इसके फैक्ट्स क्या थे? कैन एनीबडी? यहाँ पे उसका जो बिज़नेस था गन्स एंड एम्यूनेशंस का, उसकी गुडविल सेल की थी, और उन्होंने उस सेलर ने बायर के साथ क्या एग्री किया था कि वो सेम बिज़नेस 25 साल के लिए रन नहीं करेगा, और ही विल नॉट इंगेज इन एनी बिजनेस कंपीटिंग और लाइबल टू compete in any way with the business for the time carried on by the company. Is it clear? तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो टाइम पीरियड है 25 साल, वो तो रीज़नेबल है कि गन्स एंड एम्यूनेशन के बिज़नेस को स्टार्ट करने में इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, बट द सेकेंड पार्ट है वो उन्होंने कहा इट इज़ अनरीजनेबल एंड वॉइड। अनरीजनेबल एंड वॉइड। इज इट क्लियर? So this was the exception under sale of goodwill under section 27. Now there are 3 exceptions under Indian Partnership Act 1932. और ये जो exceptions हैं आपकी कहाँ पे दी गई है? These exceptions are given under section 11, section 36 and 53 of Indian Partnership Act. Section 11 क्या कहता है? वो situation cover करता है जहाँ पे person he is a partner of the firm and he agrees not to carry similar business in his own name. Is it clear? Then what section? ये section 11 था। 11 में क्या कहा? पर्सन पार्टनर है फर्म का, और वो एग्री करता है कि वो सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा। सेकेंड एक्सेप्शन है अंडर पार्टनरशिप एक्ट इज सेक्शन 36, व्हेन पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर है और वो एग्रीड करता है दूसरे पार्टनर से कि ही इज़ नॉट गोइंग टू compete द सिमिलर एंड सेम बिजनेस फ्रॉम विच ही इज़ रिटायरिंग, but that is for reasonable time and period. So last exception under Partnership Act is section 53. Section 53 says agreement between the partners of firm which has been dissolved. Agreement between the partners of the firm जो कि पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो चुकी है, not to exploit the goodwill of the business. तो ये जो आपके 4 exceptions थी, these were under statutory law. Now judicial exceptions. Judicial exceptions में आपका क्या है? रिस्ट्रिक्टिव सर्विस जाओ आवाज़ को मैं नहीं आती टूटी दी। रिस्ट्रिक्टिव सर्विस कोविनेंट
restrictive service covenant between employer and employee has held to be valid in certain cases because of judicial exception. They are not given under any statute. जो restrictive service covenant है between employer and employee has been held to be valid in certain cases because of judicial exceptions. ये कोई वही नहीं स्टैचू में नहीं दी है. Is it clear? So the following are the restrictive service covenant. नाउ इफ अगर कोई एम्प्लॉई है पूरे टाइम के लिए वहीं जॉब कर रहा है, उसे मना किया जाता है कि वो कोई और एक्टिविटी में इंगेज नहीं होएगा विच इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर, विच इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एम्प्लॉयर. ठीक है. इफ़ से एम्प्लॉई है को रिस्ट्रिक्ट या रिस्ट्रेंड किया गया है फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी अदर एक्टिविटीज़ ऑफिस इन एम्प्लॉय ऑफिस ओन. क्या जिसमें जहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से कह सकता है कि जो एम्प्लॉयर के कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिविटी उसमें नहीं जाएगा या वो अपने आप सेम नहीं रन करेगा. इज़ इट क्लियर? सो ये वैलिड रिस्ट्रिक्शंस है. क्यों? बिकॉज होल टाइम एम्प्लॉयमेंट है. एम्प्लॉई हैज़ गिवन हिज एंटायर कैपेसिटी और यू कैन से सरेंडर इट टू द एम्प्लॉयर. इज़ इट क्लियर? सो रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस दैट कैन बी पुट टू अ पर्सन हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड ऑन पार्ट टाइम विल बी वैलिड only if restrictions are reflecting to some which adversely affect the part-time employment. Is it clear? Now question comes कि whether such restrictions can be imposed on the person after he ceases to be employee. Yes, such restrictions can be imposed and they are valid subject to two conditions. That should be for a reasonable time period के लिए होनी चाहिए and it is related to engagement which are adversely affected to the interest of employer. और इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है वो मेनली फाउंड है इन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट जॉब इन बिजनेस. So this was the restrictive service contract. Now soluless contract. Soluless contract कौन से होते हैं? It is that contract in which manufacturer, producer of articles agree to sell only a particular buyer. ठीक है. सिर्फ वो कहते हैं कि हम इसी पर्टिकुलर बायर से ही इसको सेल करेंगे एंड टू nobody else giving a sole right to buyer. They are held to be valid restriction only if buyer is bound to buy the entire produce of the seller. So this agreement may be challenged under anti-monopoly law. Next, exclusive dealing contracts. Exclusive dealing contracts में क्या है? इस यहाँ पे इस एग्रीमेंट में ये प्रोवाइड किया जाता है दैट अ particular trader which deals with only other particular trader and with nobody else, and particular party will be the agent of the producer and will not deal with anybody else. ठीक है. वो किसी और से डील नहीं करेगा. They are held to be valid again subject to some conditions. वो कंडीशन क्या है? उन्होंने कहा अगर ट्रांसफ़र जो ट्रांजेक्शन है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मोनोपोली एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस. इज़ इट क्लियर? देन नेक्स्ट इज़ क्या आप अपने जो पूलिंग अरेंजमेंट है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर आर दे वैलिड? They are valid only if such pooling arrangement does not constitute monopoly and exploitation of consumer under monopoly and retirement trade practice. Is it clear? So these were the exceptions. This is section 27. We were discussing void agreement. जिसमें we have discussed section 26 and we have discussed section 27 कि आप अपने ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन पे एब्सोल्युटली या पार्शली रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकते, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन अंडर स्टैट्यूटरी लॉ दैट इज़ अंडर सेक्शन 27 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. देन देयर इज सम अंडर एक्सेप्शंस आर जुडिशली इंटरप्रेटेड ऑल्सो.
Is it clear? Thank you.